Yes, good evening, Prashant, and everyone. Once again, after yesterday's gap, it's a heavily raining everywhere throughout the Maharashtra. So take care in this time pandemic period. Okay. So it may be a concluding lecture today. We are going to conclude the chapter. Uh, we are continuing with states of matter. Am I right? So in states of matter, we know well there are three sections in this chapter. First section dealing with introduction and entry into the states of matter, especially into gaseous state. Second, middle part of the chapter is concerned with the core concept of this chapter, states of matter called as gaseous laws, where we have discussed Boyle's law, Charles' law, Avogadro's law, and Gay-Lussac's law. So these gaseous laws give the relation between temperature, pressure, volume, and number of moles. That is what we have seen here in the chapter. Then, going ahead, we have an ideal gas equation 2 again, and the different forms of ideal gas equation 2 again. Furthermore, in last lecture, we have discussed that is Dalton's law of partial pressure, how the partial pressure of any mixture, any gas, any component can be calculated when we have given with the mixture. That is what we have seen in last lecture. Kal lecture हमने discuss कर दिया. Got it? Also, कल के lecture हमने एक topic discuss किया, that is nothing but the aqueous tension. Aqueous tension. And now we are turning towards the concluding part of this chapter and the very important part of the chapter. Well, in that sense important, but the third section of the chapter, जिसके अंदर एक 4-5 टॉपिक हमें डिस्कस करना है. अगर थोड़ा सा मैं स्पीड मेंटेन करता हूँ और आप लोग थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हो तो आज के लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. अगर नहीं तो ठीक है, थोड़ा बहुत बचेगा तो कल के लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, डिपेंड्स अपॉन योर ग्रास्पिंग एंड योर कंफर्टेबिलिटी. हाउ यू आर कंफर्टेबल, accordingly we'll go ahead. So we'll go ahead with the kinetic theory of gases, KTG. So let's move to the kinetic theory of gases. Next topic related with this one. So we can have here kinetic theory of gases. That is known as KTG. और उसके assumptions. उसका जो main topic है that is nothing but the assumptions. Assumptions. Okay. So what are the assumptions of kinetic theory of gases? That is what we will discuss with you. ठीक है. अभी ऑलरेडी इस टॉपिक के बारे में आप अच्छी तरह जानते हो. इस टॉपिक के कई सारे टॉपिक्स, कई सारे पॉइंट्स आप जानते हो. दैट इज assumptions of kinetic theory of gases. फिजिक्स में एक पूरे चैप्टर का नाम है आपके kinetic theory of gases. तो ये जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो फिजिक्स के केटीजी kinetic theory of gases चैप्टर के अंदर आप बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन वही है, टॉपिक्स वही है, पॉइंट भी वही है. Kinetic theory of gases. So according to kinetic theory of gases, there are some assumptions, there are some postulates made regarding the gases. Gases के बारे में कुछ assumptions किए जाते हैं, कुछ postulates किए जाते हैं. तो we have to discuss what are these postulates out there. कौन से postulates वहाँ पे है और किस तरीके से वो postulates है वो हमें discuss करना है इस topic के अंदर. That is you can say KTG, kinetic theory of gases. Clear with this? So let's move. What are the assumptions? Assumptions are very point to point. So point number one, that is according to kinetic theory of gases, gas consists of a tiny particles. Every gas consists of a tiny particles. Tiny particles. Tiny particles mean the particles having very very smaller size. Every gas consists of tiny particles in the gas. So tiny particles होते हैं, ये सबसे पहला assumption उसका है. Tiny मतलब छोटे. इसका मतलब है छोटे particles, small particle. Every gas has a small particle. Scientifically tiny word use किया जाता है, tiny particles. Point number two. Just need ink. Okay. Point number 2 is that you can say when we are talking about these tiny particles or gases, the second assumption of this is nothing but that gaseous particles has a negligible volume. Gaseous particles has negligible volume. So all gaseous particle has negligible volume. This is also one of the important postulate for them. So gaseous particle has negligible volume as compared with the entire volume of the gas. Okay. So पूरा गैस का अगर हम लोग कंटेनर कंसीडर करते हैं, suppose this is the total container of the gas. इसके अंदर गैस भरा हुआ है, it is closed one. So these are the gaseous particles. Okay. So negligible volume मतलब ये जो molecule है, एक molecule गैस का, this molecule, the volume of this molecule is very small, almost negligible as compared to the total volume. Total volume. So
this is very important second assumption that the volume of a tiny particle or gas molecule is very small, that is negligible as compared to the total volume acquired by the gas. गैस ने जितना टोटल वॉल्यूम एक्वायर किया है उसके साथ कंपेयर करेंगे बहुत ही नेग्लिजिबल है. हाँ, पॉइंट नंबर 3. The interparticle forces between these particles are negligible. Interparticle force of attractions. Interparticle forces. So we have seen that starting में इस चैप्टर के अंदर डिस्कस किया हमने कि interparticle force of attractions होते हैं पार्टिकल के बीच में, किसी भी दो पार्टिकल के बीच में interparticle force of attractions होते हैं. ये जो interparticle force of attraction है, suppose this is first molecule, this is another molecule, और इनके बीच में जो interparticle force of attraction होता है, this is very small or equal to no, negligible. So interparticle force of attractions between the particles is negligible. ये भी उसके अंदर गया. Fourth one, all particles, gaseous particles are in random motion. All gaseous particles are in random motion. मतलब ये सारे particles are always in continuous motion, but motion होते हैं random motion. मतलब क्या होता है कि ये particle सीधा चलेगा, किसी के साथ टक्कर हो जाएगी, collision होगा, या डायरेक्शन चेंज करेगा, यहाँ पे जाएगा, फिर टक्कर होगा, फिर शायद इधर चला जाएगा, फिर टक्कर होगा, इधर चला जाएगा. जितना डिस्टेंस चलेगा वो स्ट्रेट चलेगा. बी क्लियर नाउ? ये पार्टिकल जितना डिस्टेंस चलेगा वो स्ट्रेट चलेगा, लेकिन कोलिजन होने के बाद इट विल चेंज द डायरेक्शन. डायरेक्शन चेंज कर दे कितने भी एंगल में वो चलेगा. सो एवरी पार्टिकल इज इन रैंडम मोशन. दैट रैंडम मोशन इज दिस वन. मतलब पार्टिकल जितना चलेगा स्ट्रेट चलेगा, इट विल सफर द कोलिजन एंड इट विल चेंज द डायरेक्शन. टक्कर होने के बाद वो डायरेक्शन चेंज करेगा, लेकिन सीधा चलेगा, जितना चलेगा सीधा चलेगा. दिस मोशन इज कॉल्ड रैंडम मोशन. You can say so. That is also called zigzag random motion कहा जाता है. So we can have a random motion. So every particle has a random motion in gaseous state. Fifth one, every particle being there in random motion, this suffers the collision. This suffers the collision. This strikes on the wall of container. When they strikes on the wall of container, they exert the pressure. So all particles suffers the collision. Collision मतलब टक्कर, है ना? वो पार्टिकल आपस में भी टकराते हैं और वॉल ऑफ कंटेनर के साथ भी टकराते हैं. तो ये पार्टिकल दोनों एक दूसरे में टक्कर भी होते हैं और वॉल पे भी टक्कर देंगे, है ना? सारे कंटेनर के अंदर से सब जगह वो स्ट्राइक होंगे, कोलाइड होंगे. सो एवरी पार्टिकल सफर्स द कोलिजन बिकॉज़ दे आर इन कंटीन्यूअस मोशन. ओके, नाउ ड्यू टू दिस कोलिजन, व्हेन दे कोलाइड विद द वॉल ऑफ कंटेनर, ड्यू टू कोलिजन दे एक्सर्ट द प्रेशर. सो देयर इज अ प्रेशर फिनोमेना. हाउ दिस प्रेशर इज एक्सर्टेड? सो इन दिस वे. प्रेशर इस तरीके से एक्सर्ट किया जाता है, समझ रहे हैं आप लोग? So pressure इस तरीके से exert किया जाता है. So in that sense, how pressure is created? So pressure is created in such a way that when these particles are in random motion, they collide with the wall of container. इस कंटेनर के ऊपर टक्कर देते हैं. अब सारे पार्टिकल टक्कर देंगे तो that you can say pressure exert करते हैं. Collision के अंदर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा आप लोग कि all collisions are perfectly elastic. इसका मतलब समझिएगा, परफेक्टली इलास्टिक. इलास्टिक का मतलब क्या है? तो हमने रबर लेते हैं, रबर, और हमने रबर अगर स्ट्रेच करके छोड़ देंगे तो अगेन इट विल एक्वायर इट्स ओरिजिनल पोजीशन. रबर को हम स्ट्रेच करके छोड़ देते तो इट विल एक्वायर इट्स ओरिजिनल पोजीशन. तो दैट इज यू कैन से परफेक्टली इलास्टिक. या फिर हमारे घर में अगर हम लोग, तुम में से कुछ लोग क्रिकेट खेलते होंगे, तो क्रिकेट के लिए हम लोग जो बॉल यूज करते हैं, 2-3 टाइप की बॉल होते हैं. उसमें से कभी-कभी प्लास्टिक बॉल से भी हम खेलते हैं, कभी-कभी हम लोग वो डबल टेनिस का बॉल यूज करते हैं, कभी-कभी हम लोग वो सीजन कॉर्क का बॉल यूज करते हैं, जो या अभी आईपीएल वगैरह चल रहा है उसके अंदर खेलते हैं लोग. तो वो लेदराइट सीजन का बॉल होता है, कॉर्क कहते हैं उसे. तो वो लेदराइट अलग बॉल होता है. तो अभी जो आईपीएल जिस क्रिकेट बॉल से खेला जा रहा है, वो बॉल अगर जमीन पे गिरेगा तो ज्यादा बाउंस नहीं होता है. द रीजन बिहाइंड दैट, उसका जो कोलिजन होता है दैट इज नॉट इलास्टिक. वो इलास्टिक कोलिजन नहीं होता है. बट हम जब डबल टेनिस का बॉल खेलेंगे तो उसके कोलिजन इलास्टिक टाइप के होते हैं. मतलब वो कितने कई बार बाउंस होता जाएगा, बहुत ज्यादा टक्कर देगा, बाउंस होगा, टक्कर देगा, बाउंस होगा, लाइक दैट. सो जितने ज्यादा बाउंस होंगे दैट इज कॉल्ड इलास्टिक. तो इसके अंदर होता क्या है ना, व्हेन देयर इज इलास्टिक कोलिजन दे डू नॉट लूज देयर एनर्जी. वो एनर्जी लूज नहीं करते, है ना? तो उसी तरीके से आप देखिए कि आईपीएल जिस बॉल से खेला जा रहा है, वो बॉल अगर ऊपर से नीचे गिरेगा तो ज्यादा बाउंस नहीं होता है और रुक जाएगा जल्दी. बट वही अगर उतना ही हाइट से अगर हम टेनिस का बॉल थ्रो करते हैं तो वो कई बार बाउंस होगा, बिकॉज उसके इलास्टिक होते हैं कोलिजन्स, और सीजन बॉल की कोलिजन्स इलास्टिक नहीं होते हैं. या फिर आप पत्थर की बात करते हैं, पत्थर और हम टेनिस बॉल की बात करते हैं. पत्थर हम ऊपर उठाएंगे, नीचे फेंक देंगे तो वो बाउंस नहीं होगा, बिकॉज वो इनइलास्टिक कोलिजन्स होते हैं. पत्थर जमीन के साथ टकराएगा, थोड़ा बहुत इधर उधर जाएगा, फिर वो स्टेबल हो जाएगा. बट अगर हम लोग
टेनिस बॉल की बात करते हैं तो टेनिस बॉल कई बार बाउंस हो जाएगा, तो जितने इलास्टिक कोलिजन होते हैं उतना वो बाउंसिंग होता है, बाउंसिंग हो जाता है उसके अंदर, दैट इज यू कैन से। तो इस गैसियस पार्टिकल के जो कोलिजन्स है, दीस कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक। तो परफेक्टली इलास्टिक होने के कारण होता क्या है कि ये पार्टिकल जैसे इधर टक्कर देंगे, कोलिजन होगी, उनकी एनर्जी लॉस नहीं होगी, दैट्स व्हाई वो मोशन में रहते हैं, वो मूव होते जाएंगे, कोलाइड होंगे, वापस चलेंगे लाइक दैट। अगर उनके इनइलास्टिक होते थे कोलिजन्स तो पार्टिकल सेटल डाउन होते थे, इट नेवर हैपेंस। तो गैसियस पार्टिकल के इंपॉर्टेंट अजम्पशन है, पोस्टुलेट है, they suppose the collisions, मतलब टक्कर देते हैं लेकिन सारे टक्कर कैसे होते हैं, परफेक्टली इलास्टिक होते हैं, मतलब उनका एनर्जी लॉस नहीं होता, दैट टाइप ऑफ इलास्टिसिटी उनका होता है, दैट इज यू कैन से। उस तरीके से उसके अंदर प्रेशर क्रिएट किया जाता है। देन नेक्स्ट सेवेंथ, दैट इज यू कैन से the energy of these particles, you can say every particle has some certain energy, different gaseous particles। अभी देखिए इसके अंदर मानो हमने CO2 गैस भरा हुआ है, इसके अंदर ये CO2 का पार्टिकल है, तो ये एक CO2 का पार्टिकल, दूसरा है, तीसरा है, ऐसे कितने सारे पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे पार्टिकल। हर पार्टिकल का जो मोशन है, रैंडम मोशन है, काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट है, मोशन डिफरेंट है, काइनेटिक एनर्जी उनका डिफरेंट है, ओके। हर पार्टिकल का मतलब इसके अंदर अगर 10 पार्टिकल है, 10 पार्टिकल का मोशन अलग है, क्योंकि 10 पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी अलग है। बट गैस एक ही होने के कारण उनका एवरेज काइनेटिक एनर्जी, यू कैन से एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। So average kinetic energy. So you can say this is average kinetic energy. So average kinetic energy, K for kinetic energy. So average kinetic energy is directly proportional to temperature. Average मतलब सारे पार्टिकल का मिलकर, अभी एवरेज कैसे निकाला जाता है आप अच्छी तरह जानते हो, है ना। दो सारे पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी अलग है, सारे पार्टिकल का मोशन अलग है, बट फिर भी देयर इज अ कांसेप्ट कॉल्ड एवरेज काइनेटिक एनर्जी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सो जैसा टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ता है, और ये डिक्रीज होगा तो ये भी डिक्रीज होगा, मोशन भी डिक्रीज हो जाते हैं। और इसलिए तो हम कहते हैं किसी भी गैस को अगर हम हीट करेंगे तो उनके मोशंस बढ़ते हैं, बिकॉज उनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, और गैस का टेम्परेचर निकाल लेंगे तो उनके मोशंस कम होते हैं, बिकॉज उनका काइनेटिक एनर्जी कम हो जाता है, लाइक दैट। सो ऑल दीज आर द postulates of kinetic theory of gases, KTG, kinetic theory of gases। So you can say these are the assumptions or postulates। एग्जाम में पूछा जा सकता है आपको कि write the postulates of gaseous system, or you can say assumptions of kinetic theory of gases। So what are the postulates of kinetic theory of gases? Number one, every gas consists of a tiny particles, tiny particle means the smallest particle। Number two, the volume of a single particle or single molecule is negligible as compared with the volume occupied by this entire gas। entire gas में जितना वॉल्यूम ऑक्युपाई किया है उसके साथ कंपेयर करेंगे तो सिंगल पार्टिकल का वॉल्यूम negligible होता है। Number three, between these particles interparticle force of attractions are zero, equal to no, yeah, very weak, equal to no। interparticle force of attraction, all these particles are very weak, they are equal to no। Number four, that is you can say every gaseous particle has the random motion। So all particles are in random motion, they always move here in this gaseous container। Next, being they are in random motion, they strikes on the wall of container, they suppose the collisions in between or with the wall of container। So they suppose the collision, and all collisions are perfectly elastic। That means they do not lose their energy, है ना, वो energy lose नहीं करते, that's why they can have the bounce, they can have the collisions more। So that is you can say collisions। Next, being there in random motion, they collide with the wall of container, this phenomena is nothing but converted into the pressure, that means collisions exert the pressure। all particle at a time collide with the wall of container, that is nothing but the pressure creation, so they create the pressure, that is the pressure। So pressure is that, and every gaseous particle moves with a different kinetic energy, different motion। Every gaseous particle moves with a different motion, or that it has the different kinetic energy, but the average kinetic energy of this gas is directly proportional to temperature। average kinetic energy is directly proportional to temperature। So जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, जितना टेम्परेचर कम होगा उतना उसका काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, कम होगा। क्लियर? होप सो एवरीवन गॉट दिस। दिस इज यू कैन से काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, नाउ while going towards the kinetic theory of gases, we have to discuss deviation from ideal behavior, deviation of this all real gases from the gaseous laws। so we have to discuss next nothing but the deviation of this real gases। तो ये लर्न करना है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। राइट एनी 4 assumptions or postulates of this kinetic theory of gases। clear with this? So
Now let's move next. Nothing with the deviation. Deviation, deviate होना. Okay, deviation मतलब deviate होना. अब देखिए, already हमने देखिए there are gaseous laws or 4 gaseous laws we have discussed. Number 1, Boyle's law. Volume is inversely proportional to pressure. Charles law. Volume is directly proportional to temperature. Number 3, Gay-Lussac's law. Pressure is directly proportional to temperature. And Avogadro's law. Volume is directly proportional to number of moles. Gaseous laws give the relation between pressure, volume, temperature, and number of moles. All gaseous laws are followed, obeyed by ideal gases. But as far as real gases is concerned, real gases do not obey all the laws at all the conditions. So there are 2 types of gases. Number 1, we can say ideal gas. And number 2, we have here real gas. Okay, real gas. So we can have points of differentiation between those 2. What are the ideal gases and what are the real gases? तो ऑलरेडी आपको मैंने बताया था कि आइडियल गैस कोई किसी गैस का नाम नहीं है ना? आइडियल गैस किसी गैस का नाम नहीं. दैट इज द इमेजिनरी गैस जो साइंस के अंदर कंसीडर किया है चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ और ये सारे लॉ प्रूव करने के लिए, और उसी के साथ कंपेयर किए जाते हैं सारे रियल गैसेस उसी के साथ कंपेयर किए जाते हैं एंड फिर डिराइव किया जाता है. सो उसी तरीके से अगर हम देखते हैं तो आप देखिएगा कि आइडियल गैस इज अ इमेजिनरी गैस व्हिच इज जस्ट कंसीडर. जैसे कि दुनिया में सच बोलने वाले 100% सच बोलने वाले कितने इंसान है? आइडियल, इस आइडियल कंडीशन. बहुत ही रेयरेस्ट केस होगा कि कोई 100% सच बोलता होगा सारे कंडीशंस में. दैट इज आइडियल कंडीशन. बट अगर सच बोलेंगे तो हर इंसान को सच बोलना चाहिए. एवरी पर्सन should say a truth or should talk in a truth only. That is very ideal condition. Somewhere there is a deviation, है ना? हम भी यहाँ पे बैठे हो, कभी ना कभी किसी न किसी तरीके से भले थोड़ा नॉटीनेस भी क्यों ना होगा, हमने कभी ना कभी थोड़ा नॉटीनेस किया होगा, थोड़ा झूठ बोला होगा, लाइक दैट. सो दैट इज नथिंग बट द डेविएशन. रियल फैक्शन से, रियल फैक्टर से थोड़ा सा डेविएट होना, इधर उधर चला जाना, दैट इज कॉल्ड डेविएशन. जैसे भले वो नॉटीनेस भी क्यों ना हो, मजाक के लिए भी क्यों ना हो, बट हम कभी ना कभी थोड़ा बहुत झूठ बोलते हैं. दैट इज अ डेविएशन फ्रॉम द ट्रूथ. रियलिटी से डेविएशन है. तो उसी तरीके से we have to discuss deviation of the real gases. The real gases do not follow all the laws at all the conditions, but ideal gases follow all the laws at all the conditions. Specifically आप देखते हैं, दोनों को डिफरेंशिएट करना चाहेंगे हम लोग. तो कुछ पॉइंट्स आते हैं, जरूर कुछ पॉइंट्स आते हैं डिफरेंशिएट करने के लिए. सबसे पहले कि आइडियल गैसेस क्या होते हैं? तो आइडियल गैसेस आर नॉन एग्जिस्टिंग गैसेस एंड रियल गैसेस दे आर एग्जिस्टिंग गैसेस. फॉर एग्जांपल so जैसे कि it is non-existing, and what about this? These are real existing. Say CO2, hydrogen, oxygen, NO2, O2. There are many. NH3, ammonia, है ना? There are many gases. So all these gases really exist. So they are non-existing, they really exist. Kinetic theory of gases के अंदर अभी कुछ postulates देखे. Okay, यहाँ पे particles are tiny. यहाँ पे भी particles tiny होते हैं, but volume of tiny particle is negligible. Ideal gases के अंदर the volume of single molecule is negligible as compared with the total volume occupied by the gas. Okay, यहाँ पे not negligible. Volume negligible नहीं होता है. कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम होता है, तो negligible नहीं होता है. Then interparticle force of attraction, interparticle forces are absent. यहाँ पे आइडियल गैसेस के अंदर इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, में दो पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दैट इज एब्सेंट, और हियर दैट इज प्रेजेंट. इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को निगलेक्ट नहीं कर सकते. कुछ ना कुछ तो इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता ही होता है. Next, ideal gases follow all the laws, obeys all laws at all conditions. But temperature, pressure कितना भी क्यों ना हो, they follows this law. Here they do not. They follow, मतलब they obey only at high pressure
and low temperature. लो टेम्परेचर, देखिए कोई भी रियल गैस की बात करते हैं तो कोई भी रियल गैस आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो करता है. हम जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन क्या है. यू कैन से PV is equal to nRT and you can say there is a Boyle's law, there is a Charles law, there is a Gay-Lussac law, there is a Avogadro's law. All these laws, खास करके Boyle's law और Charles law की बात आती है. बाकी लॉ तो फॉलो होते हैं लेकिन Charles law और Boyle's law नहीं फॉलो होते हैं. रियल गैसेस Charles law और Boyle's law को फॉलो करते हैं. कब? At high pressure and low temperature. Temperature has to be low and pressure has to be high. Then and then only these real gases follows ideal gas equation, follows Boyle's law and Charles law. अगर ये कंडीशन नहीं है, टेम्परेचर अगर लो नहीं है, ज्यादा है और प्रेशर अगर कुछ भी है अलग है, तो ये रियल गैसेस डेविएट होते हैं. वो आइडियल गैस इक्वेशन को या किसी भी बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं आइडियल गैस की तरह. These are real gases. So that is what we can say. So ये होता है. और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, हम ये डिस्कस कर चुके हैं चार्ल्स लॉ के अंदर -273 पे, चार्ल्स लॉ के अंदर -273 पे डिग्री सेल्सियस पे every gas is expected to acquire zero volume. Volume has to be zero. -273 पे है ना. This is the gaseous laws. तो हमने देखा हुआ है, चार्ल्स लॉ हमने देखा हुआ है. तो चार्ल्स लॉ के केस में होता क्या है कि एवरी गैस एट -273 डिग्री सेल्सियस पे जीरो वॉल्यूम एक्वायर करता है अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ. बट दिस इज पॉसिबल ओनली इन केस ऑफ आइडियल गैसेस. रियल गैसेस डू नॉट एक्वायर जीरो वॉल्यूम, दे गेट लिक्विफाइड. वो लिक्विफाई होते हैं. कोई भी रियल गैस लेंगे और उसका अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो जैसे टेम्परेचर डिक्रीज करना शुरू कर देंगे कहीं ना कहीं वो लिक्विफाई हो जाएगा, लेकिन वॉल्यूम जीरो नहीं होगा. So zero volume is not acquired by real gases, balki ideal gases acquire the zero volume. So these are the main points of differentiation between real gases and ideal gases. ठीक है ना? So once again मैं clear कर रहा हूँ. Ideal gas is an imaginary gas which is considered to derive the gaseous laws, and when they are applied to the real gases, there occurs some deviation. There occurs some deviations. तो deviation तो होता है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन होता है. And that deviation has to be measured, and वो हमें measure करना है. So these are the points of differentiation between ideal gases and real gases. What are the points of differentiation? Number one, ideal gases are the non-existing gas, whereas real gases are really existing gases like carbon dioxide, sulfur dioxide, NO2, O2, ammonia, hydrogen, nitrogen, like that. Whereas here in case of ideal gases, the volume occupied by the single particle is negligible as compared with the total volume. Volume occupied by the particle is negligible as compared with the total volume occupied by the gas. Here, the volume of single particle is not negligible. Single particle का कुछ ना कुछ तो volume होता है, वो negligible नहीं है. Then interparticle force of attraction, दो particle के बीच में जो force of attraction होता है, यहाँ पे वो negligible है, equal to no है, zero है almost. यहाँ पे zero नहीं है. Low pressure, low temperature पे, high pressure पे कुछ ना कुछ attractive force होता है, और इसलिए they behave as a single particle. पूरा गैस एक सिंगल पार्टिकल जैसे बिहेव करता है, बिकॉज इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम्स इनटू द प्ले एंड दैट्स व्हाई द पार्टिकल्स स्टार्ट अट्रैक्टिंग ईच अदर. पार्टिकल एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो अट्रैक्ट करना शुरू कर देते, तो कुछ ना कुछ फोर्सेस इंटरैक्ट होना शुरू कर देते हैं रियल गैसेस में. तो रियल गैसेस में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भले ही वीक हो लेकिन एग्जिस्ट होते हैं, यहाँ पे वो एग्जिस्ट नहीं होते. आइडियल गैसेस ओबेज all gaseous laws at all the conditions. Temperature, pressure कितना भी कम ज्यादा कुछ ना हो, क्यों ना हो, all gas laws are followed at all the conditions. Whereas in case of real gases obeys only Boyle's law and Charles law at high pressure and low temperature. बाकी rest condition पे ये वो follow नहीं करते हैं. So in case you can say real gases do not obey Boyle's law and Charles law at all conditions. They just obey at high pressure and low temperature. So this is the phenomena what we can say regarding these real gases and ideal gases. As well as one of the important points we have discussed here, that according to Charles law, every ideal gas is expected to acquire zero volume and ideal gas acquires the zero volume. But real gases do not acquire zero volume, they get liquefied. Zero volume के पहले वो liquefy होते हैं, solidify होते हैं, लेकिन वो zero volume acquire नहीं करते हैं. So these are the points of differentiation between ideal gas and real gases. So we got clear what is ideal gas, what is real gases, and what are the points of differentiation between real gas and ideal gas equations. Clear with this? Now let's move to next. That is a compressibility factor, which is responsible for the deviations. ये जो deviation हो रहा है, उसके लिए एक factor important है, and
दैट फैक्टर इज नथिंग बट यू कैन से compressibility factor. डेविएशंस के अंदर ही आता है, दैट इज यू कैन से compressibility factor. Compressibility factor. We have ideal gas equation PV is equal to nRT. So अगर मैं ये सिस्टम लेके आता हूं तो PV upon nRT is equal to Z, and this Z is nothing but you can say compressibility factor. This Z is nothing but the compressibility factor. इसे compressibility factor ऐसा कहा जाता है. अभी देखिए ना, Z के तीन वैल्यू हो सकते हैं. Z के तीन वैल्यू हो सकते हैं. एक होता है you can say Z is equal to 1. दूसरा होता है Z is greater than less than 1 या Z is greater than 1. ये तीन कंडीशंस होते हैं. Z can have three values. Okay, so PV upon nRT is equal to Z. आइडियल गैस इक्वेशन nRT इस तरफ लेके आएंगे तो इस तरफ जो रहेगा वो Z, that is called as compressibility factor which decides the deviation. मतलब गैस, रियल गैस आइडियल गैस इक्वेशन से कितना डेविएट होगा, दिस इज गिवन बाय दिस वन. इस इक्वेशन से दिया जाता है. इसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखिएगा आप लोग. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे मिलता है. सो सपोज दिस इज Z और Z क्या होता है हम जानते हैं. Z का वैल्यू क्या है, PV अपॉन nRT. PV अपॉन nRT इज अ Z जो y एक्सिस पे लिया गया है और x एक्सिस पे हम लोग लेते हैं प्रेशर. सो वी गॉट दिस वन, वी गॉट दिस वन, दिस वन. दिस इज द वैल्यू ऑफ Z व्हिच इज a constant and parallel to x axis. This is the graph what we get. अगर हम लोग Z वर्सेस प्रेशर का ग्राफ डिराइव करते हैं, लिखते हैं, तो हम लोग को इस तरह का ग्राफ मिलता है. हमने y एक्सिस पे लिया है compressibility factor कॉल्ड एज Z और Z का वैल्यू कितना है, PV अपॉन nRT, और हमने x एक्सिस पे लिया है प्रेशर. अगर हम इसका ग्राफ देखते हैं किसी भी गैस के लिए तो इस तरीके से आता है, खास करके आइडियल गैस के लिए. सॉरी, दिस इज फॉर द आइडियल गैस इक्वेशन. इस तरीके से आता है, दैट इज ये इतना हम लोगों को मिलता है और ये कांस्टेंट होता है. प्रेशर चाहे कितना भी बढ़े, प्रेशर चाहे कितना भी कम हो, दिस विल रिमेन कांस्टेंट एंड दिस इज नथिंग बट द 1. दिस इज नथिंग बट द 1. सो व्हेन इट इज इक्वल टू 1, दिस इज नथिंग बट द आइडियल गैस इक्वेशन. आइडियल गैस इक्वेशन ये फॉलो करता है. तो आइडियल गैस इक्वेशन में दिस compressibility factor is always 1, मतलब PV upon nRT is equal to 1. अभी अगर ये फैक्टर ज्यादा है और ये छोटा है तो दिस वैल्यू विल बी हायर, तो Z is greater than 1. Z is greater than 1 आएगा. And that is called as positive deviation. This is called as positive deviation. If it is greater than 1. और ये फैक्टर छोटा है और ये ज्यादा है तो Z is less than 1. That is called as negative deviation. Negative deviation. So be clear here. Real gases deviate होते हैं ideal gases से. Ideal gases सारे laws follow करते हैं सारे condition में. Real gases नहीं करते. नहीं करते मतलब बहुत ज्यादा deviate नहीं होते, है ना, थोड़ा बहुत डेविएट होते हैं. तो जितना डेविएट होते हैं, कौन से कंडीशन पे डेविएट होते हैं, दैट इज बीन समराइज्ड हियर इन दिस इक्वेशन एंड दैट इज गिवन बाय Z. तो Z का वैल्यू कितना आ रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है. Z इज इक्वल टू 1. दिस इज फॉर द आइडियल गैसेस ओनली. ये सिर्फ आइडियल गैस के लिए आता है, आइडियल गैस के लिए आता है. सो इसके अंदर हम देखते हैं तो खास करके वॉल्यूम की अगर बात करते हैं तो प्रेशर nRT कांस्टेंट रखते हैं तो ये Z ऐसा भी आता है. Z इज इक्वल टू, यू कैन से Z इज इक्वल टू V रियल वॉल्यूम ऑफ रियल गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस. आइडियल गैस. सो दिस इज व्हाट वी कैन से, क्योंकि बाकी सारे फैक्टर तो कांस्टेंट मानेंगे, रखेंगे हम लोग. सो वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस अपॉन आइडियल गैस आता है. ये वैल्यू Z का या तो इक्वल टू 1 आएगा या तो लेस देन 1 आएगा या तो ग्रेटर देन 1 आएगा. तो अब ये इक्वेशन यूज करो या ये इक्वेशन यूज करो, इट्स कम टू द सिमिलर. दोनों का मतलब वही होता है. सो इन दैट सेंस यू कैन से दिस इज द compressibility factor which decides either gas is highly compressible or not. गैस को हम लोग लिक्विफाई कर सकते हैं कॉम्प्रेस करके या नहीं कर सकते. दिस कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग Z. ये Z के तीन वैल्यू होते हैं पॉसिबल. एक और दोनों फैक्टर सेम होंगे तो Z इज इक्वल टू 1 आएगा एंड दिस इज पॉसिबल ओनली इन केस ऑफ आइडियल गैस. जो यहाँ पे ये लाइन मिलता है. सो दिस लाइन ग्राफिकली इंडिकेट्स दैट Z इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज नथिंग बट द आइडियल गैस इक्वेशन. ये आइडियल गैस का लाइन है, आइडियल गैस का लाइन. रियल अगर कोई भी गैस हम डिस्कस करते हैं, से इट्स कार्बन डाइऑक्साइड, तो रियल गैस यहाँ से स्टार्ट होकर थोड़ा नीचे आके लाइक चला जाता है. So, कोई भी गैस लेते हैं हम लोग तो लाइक इस तरीके से चले जाते हैं ना. कुछ गैसेस सीधा यहाँ से चले जाते हैं, सीधा यहाँ से चले जाते हैं. सो देयर आर डिफरेंट गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इस टाइप के अलग अलग डिफरेंट गैसेस मिलते हैं आपको.
आइडियल गैस के सिवा कोई भी गैस आपको Z इज इक्वल टू 1 नहीं मिलेगा। आइडियल गैस के सिवा किसी भी गैस का Z इज इक्वल टू 1 नहीं मिलेगा। सारे गैस के अंदर Z या तो लेस देन 1 मिलेगा, Z या तो ग्रेटर देन मिलेगा। सी दिस इज द लेस देन 1। इफ Z is less than 1 then this is the negative deviation, तो लाइन से नेगेटिव हो गया। और if Z is greater than 1 this is the positive deviation, that is Z is greater than 1, this is positive deviation। तो ये जो लाइन के ऊपर का पार्ट है that shows the positive deviation, और लाइन के नीचे का पार्ट है that shows the negative deviation of the gases, and this straight line indicates the real ideal gas, that indicates the ideal gas, क्योंकि ideal gas has Z is equal to 1, so this is the condition, and this is for the real gases which is positive deviation, and this is for the negative deviation। तो देखिए ना, अभी इस गैस की भी बात करते हैं तो एक गैस यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन होता है, उसके बाद सर्टेन पॉइंट के बाद वो वापस पॉजिटिव डेविएशन में चला जाता है। पॉजिटिव मतलब कंप्रेसिव फैक्टर उसका वापस पॉजिटिव की तरफ चला जाता है, लेकिन इस पॉइंट तक, यहाँ से लेके इस पॉइंट तक इस गैस का क्या है, ये नेगेटिव डेविएशन है। सो दिस वी कैन से नेगेटिव डेविएशन। सो मोस्ट ऑफ द गैसेस हैज डेविएशन right from the ideal gas equation, and there are many factors responsible for this deviation, but real gases do not obey ideal gas equation at all the conditions. Generally they obey it with high pressure and low temperature, but अगर टेम्परेचर ज्यादा बढ़ता जाएगा और प्रेशर कम होता जाएगा तो ये कभी ओबे नहीं करेंगे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, वो डेविएट होंगे, और these deviations may be negative deviations or may be a positive deviation depend upon the situation. That is what we can say compressibility factor, and this compressibility factor decides the liquefaction of the gases, that decide the liquefaction of the gases. These gases are, you can say, difficult to liquefy, and these gases are easy to liquefy. जिनका negative deviation होता है, these are easy to liquefy, and these gases are difficult to liquefy. तो जो gases positive deviation दिखाते हैं उनका liquefaction difficult है, और जो ये दिखाते हैं उनका liquefaction possible। मतलब here they are easily liquefied, or these gases are difficult to liquefy. So if Z is greater than 1, they are difficult to liquefy. If Z is less than 1, they are easy to liquefy. And this is the ideal conditions. So ये तो है ही है उसी हिसाब से, no doubt. Remember this? So that is what we can say compressibility factor. इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की चांसेस बहुत कम है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट का अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, खास करके जेई नीट पॉइंट ऑफ व्यू। तो व्हेन वी डिस्कस जेई नीट पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड नो दिस compressibility factor. तो PV is equal to nRT, nRT इस तरफ भेज देंगे तो that we get nothing but the Z, and that is nothing but the compressibility factor. तो गैस कंप्रेस करने के बाद लिक्विफाई होगा या नहीं होगा, that will be decided by this Z, and Z के तीन पॉसिबल वैल्यूज है, Z is equal to 1, Z is less than 1, and Z is greater than 1, and this decides that this is the ideal gas condition, which is only possible for the ideal gas. Real gases do not follow this one. Real gases follow either this one or either this one. Real gases which follow the negative deviation are easily liquefiable, or the having the positive deviations are difficult to liquefy. So that is what we can say. That is, you can say, compressibility factor. You have this. Now, one case study has been done. One case study has been done by the scientists. Scientists लोगों ने case studies किया. That is for the carbon dioxide. Okay. So carbon dioxide gas जो हम देखते हैं सारे कार्बोनेटेड ड्रिंक के अंदर भी यूज किया जाता है। मतलब हम जितने सारे कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, सारे कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है विद सम अदर गैसेस एंड ऑल। तो उसके अंदर देखा गया, तो केस स्टडी इज बीन डन फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड का केस स्टडी किया गया, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ स्टडी किया गया कि हाउ द gas behaves, especially carbon dioxide behaves at different temperature and different pressure. This has been find out here. So देखिए आप लोग, this is the curve for the carbon dioxide. This is the curve of carbon dioxide for 50 डिग्री सेल्सियस। 50 डिग्री सेल्सियस की यह कर्व मिलता है। बाकी सारे कर्व देखते हो आप लोग अलग अलग टेम्परेचर पे। This is pressure and this is volume. This is pressure and volume. और ये कौन सा लॉ है? बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है? Volume is inversely proportional to pressure. This is called as बॉयल्स लॉ। ये बॉयल्स लॉ है। तो बॉयल्स लॉ के हिसाब से वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, मतलब प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम कम होगा, या प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। सो दिस इज द कर्व व्हिच इज फॉलोड बाय कार्बन डाइऑक्साइड गैस एट 50 डिग्री सेल्सियस। सी these are the temperatures, these are the curves at different temperature, अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग कर्व आपको मिलता है। नाउ यहाँ पे आपको एक कर्व मिलता है, दैट इज व्हाट वी कैन से 30 डिग्री सेल्सियस पे मिलता है। ठीक है, यहाँ पे अलग कर्व मिलता है, ये अलग कर्व मिलता है, दैट इज 21 डिग्री सेल्सियस, 18 डिग्री सेल्सियस। ऐसे अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग कर्व्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, अलग अलग कर्व्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। रिमेंबर दिस। नाउ इस टाइप का ग्राफ आपको मिलता है यहाँ पे। सो दिस इज, यू कैन से, सो दिस इज क्रिटिकल प्रेशर PC. PC is critical pressure, and this is volume. So this is critical volume BC.
BC क्रिटिकल वॉल्यूम। आप देखिए ये जो कर्व है इसका क्या हिसाब है, दिस पार्ट इंडिकेट्स दैट इज दिस इज द लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड एंड दिस पार्ट इंडिकेट दिस इज द कार्बन व्हिच इज इन गैसियस स्टेट। अब देखिएगा ये एक ऐसा पॉइंट है, ये पॉइंट, ये गैस यहां से देखिए, ये यहां से हम जा रहे हैं, ये खास करके पहला देखते हैं जो 50 डिग्री सेल्सियस पे। तो फर्स्ट कर्व इज एट 50 डिग्री सेल्सियस, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड 50 डिग्री सेल्सियस पे बिहेवियर कैसा करता है, तो उसका प्रेशर कम करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ता है, प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम अपने आप कम होता है। सो दिस इज 50 डिग्री सेल्सियस। उसी कार्बन डाइऑक्साइड का बिहेवियर एट 30 डिग्री सेल्सियस अगर हम कैलकुलेट करते हैं 30 डिग्री सेल्सियस, तो इस तरीके का कर्व मिलता है। मतलब क्या होता है देखिए ना, यहाँ पे जैसा हम लोग प्रेशर कम करते हैं वॉल्यूम बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है। दिस इज द टेम्परेचर। ये एक ऐसा पॉइंट आता है, इस पॉइंट पे वो लिक्विफाई होता है, इस पॉइंट पे वो लिक्विफाई होता है। सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल टेम्परेचर। तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, दिस इज द टेम्परेचर एट व्हिच सब्सटेंस चेंजेस इट्स स्टेट, स्टेट चेंज कर देता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज क्रिटिकल टेम्परेचर। ओके, एंड दिस इज क्रिटिकल प्रेशर। द प्रेशर एट क्रिटिकल टेम्परेचर इज कॉल्ड एज, यू कैन से, क्रिटिकल प्रेशर। क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो प्रेशर होता है उसे क्रिटिकल प्रेशर बोला जाता है, और क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो वॉल्यूम होता है दैट इज कॉल्ड एज क्रिटिकल वॉल्यूम, वो क्रिटिकल वॉल्यूम। दिस इज द टेम्परेचर बिलो व्हिच दिस गैस इज इन लिक्विड फेज, गैस लिक्विड फेज में आता है और उसके आगे वापस वो गैसियस फेज में होता है, उसके आगे वो गैसियस फेज में होता है वापस। सो दैट इज व्हाट कैन से। तो ये पॉइंट ऐसा है दैट कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, यू कैन से दैट इज आल्सो यू कैन हैव क्रिटिकल वॉल्यूम यहां पे मिल जाता है। तो दिस इज इन लिक्विड फेज, दिस इज इन गैसियस फेज। तो अलग अलग टेम्परेचर पे उसका इस तरीके से अलग अलग बिहेवियर है, लेकिन जैसे इस प्रेशर के और इस वॉल्यूम के अंदर आएंगे ऑल दिस विल बी लिक्विड फेज, यहाँ पे लिक्विड फेज मिलेगा, और इसके बाद हम लोगों को गैसियस फेज मिलेगा। सो दिस इज द टेम्परेचर प्रेशर रेंज वॉल्यूम रेंज, जहाँ पे हम लोगों को लिक्विड फेज मिलेगा, यहाँ पे हम लोगों को गैसियस फेज मिलेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड को अगर लिक्विफाई करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को लिक्विफाई करना है, तो उसको प्रेशर देखिए, यहाँ पे प्रेशर हमें कम करना पड़ेगा। ओके, टेम्परेचर भी कम करना पड़ेगा। सो दिस टेम्परेचर इज बीन डिक्रीज, और खास करके इट इज बीन फाउंड दैट ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे कार्बन का जो टेम्परेचर होता है वो 38 डिग्री सेल्सियस होता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर 73 होता है। सो दिस इज, यू कैन से, टेम्परेचर इज 38 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर इज 73 atm, इतना प्रेशर होता है। दिस इज द टेम्परेचर प्रेशर वेयर गैस लिक्विफाइज, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे लिक्विफाई होता है। ओके, अभी इसके अंदर और एक खास बात आती है, इसके अंदर खास बात आती है, मतलब किसी भी गैस का वॉल्यूम जो है ना वो टेम्परेचर प्रेशर अफेक्ट करता है। किसी भी गैस का वॉल्यूम इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर एंड प्रेशर। किसी भी गैस के ऊपर प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम कम होता है, और प्रेशर बढ़ाएंगे तो वो लिक्विफाई होने की चांसेस ज्यादा होती है ना। बट एट द सेम टाइम ओनली प्रेशर से काम नहीं चलेगा, टेम्परेचर के साथ भी डील करना पड़ता है। तो टेम्परेचर भी कम ज्यादा करना पड़ता है, टेम्परेचर जितना डिक्रीज करेंगे उतना वो लिक्विफाई होने की चांसेस ज्यादा है, लिक्विफाई होने की चांसेस ज्यादा है। बट अगर हम टेम्परेचर के साथ डील नहीं करते और ओनली प्रेशर के साथ डील करते हैं, तो 38 डिग्री सेल्सियस इज द टेम्परेचर फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड अबव व्हिच आप कितना भी प्रेशर कम करो, ओके, 38 डिग्री क्या होगा, मतलब 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखा हमने गैस का टेम्परेचर रखा हमने 40 डिग्री सेल्सियस, अबव 38 डिग्री सेल्सियस 40 डिग्री रखा हमने, और 40 डिग्री पे प्रेशर बहुत बढ़ाया है ना, बहुत प्रेशर दिया उसके ऊपर, तभी भी वो गैस लिक्विफाई नहीं होता है। गैस कितना भी चेंजेस करो, कितना भी प्रेशर चेंजेस करो, गैस लिक्विफाई नहीं होता है। तो इसका मतलब ये है कि ओनली प्रेशर बढ़ाने से गैस लिक्विफाई नहीं होता है। गैस को अगर लिक्विफाई करना है तो प्रेशर के साथ साथ टेम्परेचर भी मैटर करता है। तो 38 डिग्री सेल्सियस इन केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हर गैस का वो पॉइंट डिफरेंट होगा, दैट इज कॉल्ड एज क्रिटिकल टेम्परेचर। तो 38 डिग्री सेल्सियस इज द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अबव व्हिच नो मैटर हाउएवर इज द प्रेशर, व्हाटएवर इज द प्रेशर, इट डू नॉट लिक्विफाई। तो गैस को लिक्विफाई करना है तो टेम्परेचर आपको 38 डिग्री सेल्सियस लाना पड़ता है और फिर प्रेशर देना पड़ता है, तब जाके गैस क्या होगा, लिक्विफाई होगा। सो दिस इज कॉल्ड एज, कैन से, critical temperature, critical pressure and critical volume. Clear? So this is the case of the hydrogen carbon dioxide. Similar way we can have the case of hydrogen, oxygen, nitrogen का केस भी पढ़ा जा सकता है, जिसके थ्रू अंडरस्टैंड किया जा सकता है what is the gaseous behavior. Clear with this? What we have completed in today's lecture. आज के लेक्चर में हमने तीन मेजर टॉपिक डिस्कस कर दिए। नंबर 1, that is you can say kinetic theory of gases के assumption देखे, 5, 6, 7 assumption देके वो पूछे जा सकते हैं, kinetic theory of gases के assumptions. Point number 2,
we have discussed the ideal gas and real gas, and the deviation depends upon this ideal and real gases. That is compressibility factor. उसके ऊपर वो depend करता है. So we have seen the deviation of the real gases. So we have first differentiated between what is ideal gas, what is real gas. ये हमने differentiate कर दिया और उसके आधार पर देखा हमने what is the compressibility factor और compressibility factor कैसे affect करता है liquefaction, ये हमने discuss कर दिया. And then we have studied the liquefaction of carbon dioxide gas. This is the case study of carbon dioxide. How carbon dioxide or where carbon dioxide can be liquefied. That is what we have studied. Now, last thing remaining is nothing but the liquid state. और liquid state के अंदर हमें 3 to 4 definition discuss करना है. But अभी हमारा time खत्म हुआ तो मिलता है कल के lecture में. Thank you very much. See you tomorrow.